Good afternoon, students. Today we start our next topic of chapter executive. Today we learn about the nominal head of our country, that is the president. The topic is the Indian president, the nominal executive. As we know that India has a parliamentary system of government in which the president is the constitutional head of our nation and the prime minister is the actual head of our country. भारत में संसदीय लोकतंत्र है और इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इसमें राष्ट्रपति जो नाम मात्र का मुखिया होता है और प्रधानमंत्री उसकी सभी ताकतों का प्रयोग करता है और देश का वास्तविक मुखिया होता है. This parliamentary system of government is adopted from United Kingdom, Britain. So let us start about our first citizen of our country, that is the president. The president of India is the nominal or the constitutional head of our country. So what are the qualifications to become the president of India, which are mentioned in Article 58. कौन सी योग्यताएं होंगी राष्ट्रपति बनने के लिए? इन सभी योग्यताओं का वर्णन अनुच्छेद 58 में भारतीय संविधान में किया गया है. मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत देश का नागरिक होना चाहिए. एज मस्ट बी 35 एंड अबव, आयु 35 वर्ष या उससे ऊपर होनी चाहिए. शी शुड बी एन एलिजिबल वोटर एंड शुड बी एलिजिबल फॉर द कंटेस्टिंग इलेक्शंस टू लोकसभा. उसमें वे सभी योग्यताएं होनी चाहिए जो भारत का एक मतदाता रखता है या लोकसभा चुनाव लड़ने वाला जो कैंडिडेट, वो सभी योग्यताएं राष्ट्रपति में होनी चाहिए. शी शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए. नो बैंकरप्ट, दिवालिया नहीं होना चाहिए. शी शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वह संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए. सो दीज आर द क्वालिफिकेशंस टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट वी डिस्कस हियर अबाउट द इलेक्शन प्रोसेस, that which persons become the part of the president election. So election process which is given in Article 54, what Article 54 say that Article 54 of the Constitution provides that the president is to be elected by an electoral college consisting of. So what do you mean by electoral college? In the electoral college there are elected members of parliament, both houses, Lok Sabha lower house and Rajya Sabha upper house. 543 elected members and 233 members from Rajya Sabha. Those persons, those who are nominated by the president as Anglo-Indian, 2 persons in Lok Sabha and 12 member of Rajya Sabha, they are not participating in the election of president. So only elected member of parliaments, they become the part of the electoral college. Next, the elected members of legislative assemblies of the states and the total of 4,120. These are the number which are coming from the states and 2 union territories. Elected members of MLAs of 2 UTs, Delhi and Puducherry. At present, Jammu and Kashmir is the 3rd UT which has its own legislative assembly, but I am talking about before 2019 when we have 29 states and 7 union territories. So total we have number of MPs and MLAs is 4,896. These persons become the part of electoral college and choose the president of India. Next, that the election of president is held on the basis of proportional representation by single transferable vote system. So which system is adopted for the election of president? Proportional representation system with transferable vote system, which we have discussed in our previous videos. So what is the vote of an MLA and what is the vote of an MP? There are formulas to calculate the vote value of an MLA. Let us discuss one by one. First of all, we are discussing here about the vote value of an member of legislative assembly. So there is formula: total population of the state
अपॉन टोटल नंबर ऑफ MLAs डिवाइडेड बाय 1000। अगर हमें एक MLA की वोट वैल्यू निकालनी है तो हमें उस राज्य की जनसंख्या के बटे में MLAs उस राज्य से कितने राज्य विधानसभा सदस्य चुने जाते हैं और उनको हमें 1000 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए स्टेट इज टेकन फ्रॉम द सेंसस ऑफ 1971 till 2031। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट आई वांट टू टेल यू कि 2031 तक जितने भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन होंगे उसमें 1971 का जो सेंसस है उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, वोट वैल्यू निकलेगा। क्योंकि जो सेंसस होती है वो फर्स्ट टाइम हमारे इंडिया में 1872 में कंडक्ट की गई थी ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम, बट इट वॉज इनकम्प्लीट। फर्स्ट टाइम द सक्सेसफुल सेंसस वॉज हेल्ड इन 1881 ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम, एंड आफ्टर दैट आफ्टर एवरी 10th ईयर देर इज सेंसस कंडक्टेड बाय आवर इंडियन गवर्नमेंट। तो इसमें जो डाटा है वो 1971 का लिया जाता है और 2031 के बाद जितने भी प्रेसिडेंट इलेक्शन होंगे वो 2031 की सेंसस के अकॉर्डिंग होंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बिहार का। बिहार में जो असेंबली सीट्स है 243 है और पॉपुलेशन जो है 42126,236 है। अगर वोट वैल्यू हम बिहार के एक MLA की निकालते हैं तो टोटल पॉपुलेशन को हम डिवाइड करते हैं किससे, आप टोटल MLAs और डिवाइडेड बाय 1000, तो कितना आता है 173 जो है वो वोट वैल्यू निकल के आ जाता है एन MLA ऑफ बिहार। देयर आर 28 स्टेट्स इन आवर कंट्री इंडिया। ईच स्टेट हैज़ इट्स ऑन पॉपुलेशन, डिफरेंट पॉपुलेशन है, डिफरेंट उनके नंबर हैं MLAs के, और इसलिए उनका जो वोट वैल्यू होता है वो भी क्या होता है, डिफरेंट निकल के आता है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द वोट वैल्यू ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करते हैं तो हमारे पास 2 हाउसेज है, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो उनका कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले आएगा वोट वैल्यू ऑफ ऑल MLAs। जितने भी हमारे MLAs हैं उनका टोटल वोट वैल्यू क्या है उसको हम डिवाइड किससे कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ MPs। और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ MPs हो गए लोकसभा राज्यसभा के मिला के 776, और जो टोटल वोट वैल्यू निकल के आएगा पूरे इंडिया का जो हमारे स्टेट असेंबलीज का 549,474। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 708 वोट वैल्यू ऑफ एन MP। तो हमारे एक सांसद का जो मत का मूल्य है वो कितना आ जाएगा, 708 जो है वो हमारे एक सांसद का मत मूल्य निकल कर आ जाएगा। और अगर हम टोटल वोट वैल्यू निकालें ऑल MPs का तो सिंगल का 708, टोटल MPs कितने हमारे पास 776। तो अगर हम इसका टोटल निकालते हैं तो 5,49,408 जो है वो हमारे सभी MPs का जो है वोट वैल्यू हमारे सामने निकल कर आता है। तो ये बहुत समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई MP या MLA जो हमारा इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा होता है, जो प्रेसिडेंट को चुनते हैं, तो उनका वोट वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो MLA का भी मैंने काफ़ी आसान शब्दों में आपको बता दिया कि भाई MLA का वोट वैल्यू कैसे निकालेंगे कि टोटल पॉपुलेशन उस स्टेट की उसको हम डिवाइड कर देंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ MLAs और डिवाइडेड बाय 1000। और इसके बाद MPs का निकालेंगे तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, उसका हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारे पास टोटल वैल्यू निकल के आई है MLAs की उसको हमें किससे डिवाइड कर देना है, टोटल नंबर ऑफ MPs से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट आता है टोटल वोट वैल्यू ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। तो इसमें 549,474 जो MLA की वोट वैल्यू है उसके अंदर हम सभी MPs की वोट वैल्यू को अगर ऐड कर देते हैं तो ये हमारे पास जो है वो टोटल इलेक्टोरल कॉलेज का वोट वैल्यू निकल कर आ जाता है। अब कौन देश का प्रेसिडेंट बनेगा ये डिपेंड करता है, क्योंकि प्रेसिडेंट बनने के लिए 51% जो है वो सिक्योरिंग बहुत ज़रूरी है। इसके लिए टोटल वोट वैल्यू ऑफ कास्टेड वोट्स, ऐसा तो जरूरी नहीं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के दौरान सभी MPs और MLAs प्रेजेंट रहें। तो ये तो हमने कंप्लीट माना है कि लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी MP हैं या स्टेट असेंबलीज के जितने भी MLAs हैं उनका वोट वैल्यू निकाला है। तो उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से और +1 अगर हम डाल देंगे तो जो आपका एक वैल्यू निकल के आएगा, जो भी व्यक्ति जो भी कैंडिडेट्स उसे प्राप्त कर लेगा वो हमारे देश का क्या बन जाता है, राष्ट्रपति बन जाता है। द प्रेजिडेंट इज इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ 5 years. He is eligible once for re-election. The one and the only Dr. Rajendra Prasad, who became the first president of India. He was re-elected again for 10 years. It means the total tenure of Dr. Rajendra Prasad from 26th of Jan 1950 to 13th
of May 1962. It was the tenure of the Dr. Rajendra Prasad, who was the first president of India. The oath of office to the president is administered by the senior most judge of the Supreme Court. It means the Chief Justice of India. राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. अगर चीफ जस्टिस बाय द वे नहीं हो तो जो सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ दिलाता है. द सैलरी एंड अलाउंसेस इज गिवन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. राष्ट्रपति के सभी वेतन और भत्ते कहाँ से आते हैं? जो भारत की संचित निधि है वहाँ से दिए जाते हैं. आई वॉन्ट टू टेल यू वन इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट. अगर हम बात करें, जो हमारे छठे नीलम संजीवा रेड्डी जब हमारे देश के राष्ट्रपति बने थे 25 जुलाई 1977 को वो हमारे देश के क्या बने थे? राष्ट्रपति बने थे. और 25 जुलाई 1982 तक वो हमारे देश के राष्ट्रपति बने थे. तब से लेकर और 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तक हर राष्ट्रपति ने जो पद की शपथ ली है वो कब से ली है? 25 जुलाई 2017. जो 14वें हमारे राष्ट्रपति थे श्री रामनाथ कोविंद जी, तो 1977 से लेकर 2017 तक जितने भी देश के राष्ट्रपति बने हैं उन्होंने अपने पद की जो शपथ ली है वो कब ली है? 25 जुलाई को ली है. नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग हेयर द रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड बिफोर इट्स टेन्योर ऑफ 5 years ओनली 2 conditions. अगर राष्ट्रपति अपना क्या दे दे? रेजिग्नेशन दे दे वाइस प्रेसिडेंट को, या इम्पीचमेंट प्रोसेस ला दिया जाए किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा. इफ द पार्लियामेंट रिप्रेजेंट द इम्पीचमेंट प्रोसेस एंड पास्ड by the both houses by the 2/3 majority, then the post of president will be vacant. किसी भी राष्ट्रपति के अगेंस्ट में जो इम्पीचमेंट प्रोसेस आता है उसका एक ही सबसे बड़ा रीजन होता है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स. अगर कोई राष्ट्रपति संविधान के नियमों का उल्लंघन कर देता है तभी उस राष्ट्रपति के खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसेस लाया जा सकता है. सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट. The president may be writing in hand send his resignation to the vice president. So one important question कि प्रेसिडेंट अपना त्यागपत्र किसे देगा? वाइस प्रेसिडेंट को देगा. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 61, आर्टिकल 61 क्या कहते हैं? द प्रेसिडेंट मे बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट. देयर इज वन प्रोसेस विच इज गिवन इन आर्टिकल 61 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, that is the process of impeachment, which can be put in the either house of the parliament, that is Lok Sabha and Rajya Sabha. The impeachment proceeding may begin in either house of parliament, signed by not less than 1/4 of the total members of the house. The president must be informed about impeachment process before 14 days in written. राष्ट्रपति को impeachment process की जानकारी 14 days written के अंदर उसको क्या करनी पड़ती? देनी पड़ती है. And the president has the right to defend himself in personal or through his lawyer. president के पास अपना right होता है कि वो क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? अपना डिफेंड कर सकता है. कहाँ कैसे कर सकता है? खुद कर सकता है या अपने लॉयर के द्वारा कर सकता है. इफ आफ्टर इन्वेस्टिगेशन बोथ हाउसेज पास द रेजोल्यूशन बाय 2/3 मेजोरिटी, द प्रेसिडेंट इज कंसिडर्ड टू हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस. अगर ये रेजोल्यूशन 2/3 मेजोरिटी से पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट की पोस्ट को क्या समझा जाता है? वैकेंट समझा जाता है. The office of a president even fall vacant due to his death, illness, removal or resignation. During this time इलेक्शंस हैव टू हेल्ड विद इन 6 months. 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाने क्या होते हैं? कंपलसरी होते हैं. इन द मीन टाइम वाइस प्रेसिडेंट ऑफिशिएट्स एज एक्टिंग प्रेसिडेंट. इस समय में वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करता है. अगर एक क्वेश्चन और बनता है कि अगर इफ वाइस प्रेसिडेंट डिनाइड टू वर्क एज द प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देन हु विल वर्क? द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. सो today we learn about the Indian president, the nominal executive, about the election process, what is the vote value of an MLA, an MP, and the removal of the president of India by the process of impeachment. Thank you and have a nice day.